Every government servant holding a supervisory post take all possible steps to ensure the integrity and devotion to duty of all government servant for the time being under his control. जो भी सुपरवाइजरी ऑफिसर हैं उनके अंडर कंट्रोल में जो भी रहते हैं एम्प्लॉय, तो ऑफिसर को ध्यान रखना है सुपरवाइजर को कि जिस टाइम तक वो उनके अंदर रहते हैं पूरा डिसिप्लिन और लॉ का अंतर्गत रहेंगे। 2 का 2, नो गवर्नमेंट सर्वेंट शैल in the performance of his official duties or in the exercise of power conferred on him act otherwise than in his best judgment except when he is acting under the direction of official superior। ये आपका 2 का 2 नंबर पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है। जब आप किसी ऑफिशियल सुपीरियर के डायरेक्शन के तहत काम कर रहे हैं तो आपको उन्हीं के डायरेक्शन के हिसाब से काम करना है, बट अगर ऑफिशियल सुपीरियर के डायरेक्शन के अंतर्गत काम नहीं कर रहे हैं तो आपको अपना बेस्ट जजमेंट के हिसाब से काम करना होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। The direction of the official superior shall ordinarily be written। जो भी आपको सीनियर अधिकारी होंगे, सुपरवाइजर होंगे, वो आपको लिखित में देंगे आदेश, रिटन में। ओरल डायरेक्शन टू सबऑर्डिनेट, मौखिक जो बोला जाता है उसको अवॉइड करना है एज फार एज पॉसिबल, जहां हो सके, बट कभी कभी दे सकते हैं, बट the issue of oral direction becomes unavoidable, the official superior shall confirm in writing with immediately। इस अगर मौखिक कोई आदेश देते हैं उनको तुरंत जब समय मिले तो उसको लिखित में भी देना है। अगर नहीं देते हैं तो ये गवर्नमेंट ऑफिशियल का भी ड्यूटी है कि वो उनसे लिखित में ले ले। A government servant who has received oral direction from his official superior, oral direction अगर दिया जाता है, shall seek confirmation of the same in writing as early as possible, whereupon it shall be the duty of the official superior to confirm the direction in writing। सुपीरियर ऑफिसर का भी ड्यूटी है कि राइटिंग में दे, और गवर्नमेंट सर्वेंट का भी ड्यूटी है कि वो उनसे राइटिंग में उनसे मांग ले। क्लियर है? ये आपका 3 का 2 का ये तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे चारों पॉइंट। इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन दिए गए हैं। Explanation 1, a government servant who habitually fails to do the tasks assigned to him। ऐसा गवर्नमेंट सर्वेंट जिसको जो वर्क दिया जाता है वो नहीं कर पाता है within the time set of the purpose and with the quality of performance expected to him shall be deemed to be lacking of devotion। उसको पता चलता है कि वो lacking of devotion है, टाइमली अगर काम नहीं करता है तो। Explanation 2, nothing in clause 2 of subrule 2 shall be construed as empowering a government servant to evade his responsibility by seeking instruction from or approval of a superior officer or authority when such instructions are not necessarily under the scheme of distribution of power and responsibility। जब DOW के तहत वर्क नहीं है और उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाता है तो DOW में हमेशा लिखा जाता है कि सीनियर ऑफिसर का जो भी ऑर्डर होगा उसको काम किया जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर ऑफ द सीनियर सुपरवाइजर और ऑफिसर द एम्प्लॉय हैव टू डू द वर्क। ठीक है, रूल नंबर 3 भी आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद करेंगे अच्छे से। नेक्स्ट रूल नंबर 3A, promptness and courtesy। no government servant shall in the performance of his official duties act in a discourteous manner, means उसको अच्छे मैनर में बात करना है, गलत मैनर में गलत बात, अनपार्लियामेंट्री वर्ड का यूज नहीं करना है ऑफिशियल ड्यूटीज में। पॉइंट नंबर बी, इन हिज ऑफिशियल डीलिंग विथ पब्लिक or otherwise adopt dilatory tactics or willfully cause delay in disposal of the work assigned to him। जो पब्लिक का ऑफिशियल डीलिंग है उसको प्रॉपर करना है और उसको टाइमली करना है, डिले नहीं करना है, तो ये ड्यूटी है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3B, ऑब्जर्वेंस ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज। एवरी गवर्नमेंट सर्वेंट at all the times act in accordance with the government policies regarding age of marriage, preservation of environment, protection of wildlife and cultural heritage। Observe the government policies regarding the prevention of crime against women। Point number 3C, prohibition of sexual harassment of working women।
No government servant shall indulge in any act of sexual harassment of any woman at workplace. Every government servant who is in charge of a workplace shall take appropriate steps to prevent sexual harassment to any woman at workplace. Explanation for the purpose of this rule. यहाँ पे definition दिया है. The following circumstance, among other circumstances, if it occurs or is present in relation to connected with any of the behavior of sexual harassment, may amount to sexual harassment. तो ये सब उसका डिफिनेशन है. पिछले बार आईपी एग्जाम में डिफिनेशन भी क्वेश्चन में पूछा गया था, तो इसको आप लोग एक दो बार पढ़ लेंगे. वर्क प्लेस का डिफिनेशन भी पूछा जाता है. देख लीजिए यहाँ पे क्या है. वर्क प्लेस मीन्स एनी डिपार्टमेंट, ऑर्गेनाइजेशन, अंडरटेकिंग, एस्टेब्लिशमेंट, इंटरप्राइज, इंस्टीट्यूशन, ऑफिस, ब्रांच owned, controlled, financed by the central state government, hospital, nursing home, any sports institute, stadium, sports complex, competition or games venue, whether residential or not, used for training sports or other activities relating thereto. Any place visited by the employee arising out of or during the course of employment, including transportation provided by the employer for undertaking such journey, a dwelling place or a house. ये सारा आपका डिफिनेशन है. वर्क प्लेस का डिफिनेशन था ये भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है इससे. नेक्स्ट है रूल नंबर 4, एम्प्लॉयमेंट ऑफ नियर रिलेटिव ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट इन कंपनीज और फर्म. गवर्नमेंट सर्वेंट को नियर रिलेटिव का अगर कंपनीज और फर्म्स में अगर जॉब लग रहा है तो उसके लिए सरकार से परमिशन लेना है. उसके लिए कंडीशन है कुछ, जिससे आपका डायरेक्ट डीलिंग है तो उसके लिए आपको परमिशन लेना पड़ेगा. नो गवर्नमेंट सर्वेंट शैल यूज हिज पोजीशन, अपने पद का, और इन्फ्लुएंस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू सिक्योर एम्प्लॉयमेंट ऑफ एनी मेंबर ऑफ हिज फैमिली इन एनी कंपनी और फर्म. किसी भी कंपनी फर्म में अपने पोजीशन का इस्तेमाल नहीं करेंगे. No class 1 officer shall, except with the previous sanction of the government, permit his son, daughter, or other dependent to accept employment in any company or firm with which he has official dealing in any other company or firm having dealing with the government. क्लास 1 का ऑफिसर कोई भी अपने नियर रिलेटिव को ऐसे कोई कंपनी फर्म में ड्यूटी नहीं देंगे जहां से सेंट्रल गवर्नमेंट का डायरेक्ट डीलिंग है या फिर उनके ऑफिस का डायरेक्ट डीलिंग है. तो ये 2 पॉइंट है, दोनों का ध्यान रखेंगे. रूल नंबर 1 है यहाँ पे 4 का 1 फॉर ऑल गवर्नमेंट सर्वेंट, एंड रूल 2 का 1 का है फॉर क्लास 1 ग्रुप ए गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए. प्रोवाइडेड दैट वेयर द एक्सेप्टेंस ऑफ द एम्प्लॉयमेंट कैन नॉट वेट, कुछ ऐसा जगह पे होगा जहां पे वेट नहीं कर सकते हैं एम्प्लॉयमेंट के लिए. prior permission of the government or otherwise considered urgent, जहां पे अर्जेंट है द मैटर शैल बी रिपोर्टेड टू द गवर्नमेंट. आप जॉब जो है वो ले लेंगे और मैटर गवर्नमेंट को रिपोर्ट कर देंगे. एंड द एम्प्लॉयमेंट में बी एक्सेप्टेड प्रोविजनली, आप एम्प्लॉयमेंट को ले लेंगे. A government servant shall, as soon as he becomes aware of the acceptance of a member of his family of an employment in any company, किसी भी कंपनी में रिलेटिव ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट को अगर जॉब लग जाता है कंपनी और फर्म, intimate such acceptance to the prescribed authority and shall also intimate whether he has or had any official dealing with the company or firm. ऑफिशियल डीलिंग है या नहीं सारा उसको बताना पड़ेगा अपने ऑफिस में. Provided that no such intimation shall be necessary in the case of class 1 officer if he has already obtained sanction. अगर सैंक्शन ले लिया है तो इंफॉर्मेशन देने की जरूरत नहीं है. सैंक्शन क्लास 1 को लेना है और जनरल गवर्नमेंट सर्वेंट को इंफॉर्मेशन देना है. अगर ऑफिशियल डीलिंग है तो परमिशन लेना है, जनरल केस में इंफॉर्मेशन देना है. सब रूल 3 है, रूल 4 का सब रूल 3. No government servant shall, in the discharge of his official duties,
deals with any matter or give or sanction any contract to any company or firm or any other person if any member of his family is employed in that company or firm or under that person, or if he or any of his family is interested in such matter or contract in any other manner, and the government servant shall refer every such matter or contract to his official superior, and the matter or contract shall therefore be disposed of according to the instructions to the authority to whom the reference is made. ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट इज रूल नंबर 5, टेकिंग पार्ट इन पॉलिटिक्स एंड इलेक्शन। पॉलिटिक्स एंड इलेक्शन में आपको पार्ट नहीं लेना है। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे पूछा जाता है, कोई भी जो आप ज्वाइन किए हैं पार्टी वो पॉलिटिकल पार्टी है या नहीं, तो इसमें गवर्नमेंट का डिसीजन फाइनल होगा। ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, किसका डिसीजन फाइनल होगा, डीजी का, सेक्रेटरी का, प्रेसिडेंट का, गवर्नमेंट का? तो गवर्नमेंट का डिसीजन। ये आप ध्यान रखेंगे हमेशा, ये क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है एवरी ईयर। टेकिंग पार्ट इन politics and elections, no government servant shall be a member of or be otherwise associated with any political party or any organization which takes part in politics, nor shall he take part in, subscribe in, aid or assist or any manner any political movement। कोई भी political party है उसको आप नहीं ज्वाइन कर सकते हैं। It shall be the duty of every government servant to endeavor to prevent any member of his family। आप अपने फैमिली मेंबर को भी प्रिवेंट करेंगे कि आप पॉलिटिकल पार्टी ना ज्वाइन करें। बट अगर ज्वाइन कर लेते हैं तो इसका इंफॉर्मेशन आपको गवर्नमेंट को देना है। ये है 5 का सब रूल 2। 5 का सब रूल 3 क्या है? If a question arises whether a party is a political party or whether any organization takes part in politics or whether any movement or activity falls within the scope of sub rule 2, the decision of the government thereof shall be final। मैंने वही बताया, कौन सा पार्टी पॉलिटिकल पार्टी है या नहीं, ये गवर्नमेंट का डिसीजन फाइनल होगा। इससे लगभग सभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सब रूल 4, no government shall canvass or otherwise interfere with or us his influence in connection with or take part in an election to any legislature or local body। तो इसमें भी आपको भाग नहीं लेना है। Provided that a government servant qualified to vote at such election may exercise his right to vote, but where he does so, he shall give no indication of the manner in which he proposed to vote or has voted। ये ध्यान रखना है। आप अपना वोट दे सकते हैं। A government servant shall not be deemed to have contravened the provision of this sub rule by reason that he assist in the conduct of election in due performance of a duty imposed on him। जो आपको इलेक्शन में ड्यूटी लगा है वो तो आपको करना ही है क्योंकि वो गवर्नमेंट का ऑर्डर है, बट पॉलिटिकल पार्टी नहीं ज्वाइन करना है। ठीक है, ये ध्यान रखना। एक्सप्लेनेशन है इसमें, द डिस्प्ले बाय ए गवर्नमेंट सर्वेंट ऑन हिज पर्सन व्हीकल, अपने व्हीकल पे, गाड़ी पे, अपने पर्सन पे, अपने बॉडी पे या रेसिडेंस में कोई भी सिंबल वगैरह किसी भी पार्टी का यूज नहीं करना है। ठीक है, ये सब ध्यान रखना है। नेक्स्ट है रूल नंबर 6, ज्वाइनिंग ऑफ एसोसिएशन बाय गवर्नमेंट सर्वेंट्स। No government servant shall join or continue to be a member of an association the objects or activities of which are prejudicial to the interest of sovereignty and integrity of India। भारत की संप्रभुता, अखंडता के विरुद्ध जो भी ऑर्गेनाइजेशन होगा उसको ज्वाइन नहीं करना है। ठीक है, एज पर रूल नंबर 7, सॉरी रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 में सिंपल है, बट ये डायरेक्टली आपको रूल पूछा जा सकता है। रूल नंबर 7, डिमॉन्स्ट्रेशन एंड स्ट्राइक। कोई घेराव, स्ट्राइक वगैरह आपको नहीं करना है। नो गवर्नमेंट सर्वेंट शैल इंगेज हिमसेल्फ
or participate in any demonstration which is prejudicial to the interest of the sovereignty and integrity of India, the security of the state, friendly relation with the foreign states, public order, decency or morality, or which involves contempt of court, defamation or incitement of an offense. तो इस सब तरह का एक्टिविटी आपको नहीं करना है. No government servant shall resort to or in any way abet from any of strike or coercion or physical duress in connection with any matter pertaining to his service or the service of any other government servant. तो इस तरह का स्ट्राइक और डिमोन्स्ट्रेशन नहीं करना है. नेक्स्ट इज रूल नंबर 8, कनेक्शन विथ प्रेस और अदर मीडिया. आप गवर्नमेंट के बिना परमिशन के कोई भी बुक पब्लिश नहीं कर सकते हैं, कोई भी मीडिया में अपना बयान नहीं दे सकते हैं. नो गवर्नमेंट सर्वेंट शैल एक्सेप्ट विद द प्रीवियस सैंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट own wholly or in part conduct or participate in the editing or management or of any newspaper or other periodical publication or electronic media. Nothing in sub-rule 1 shall apply in case a government servant in the bona fide discharge of his official duties publishes a book or participate in a public media. ये ध्यान रखना है. A government servant publishing a book or in a public views by him or his own. पहला तो ये है कि किसी गवर्नमेंट की किसी योजना का बुराई नहीं कर सकते हैं, और सेकेंड पार्ट से न्यूज जो आपका नहीं है. ये आपका रूल नंबर ध्यान रखेंगे. नेक्स्ट है रूल नंबर 9, क्रिटिसिज्म ऑफ गवर्नमेंट. गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज आप नहीं कर सकते हैं. नो गवर्नमेंट सर्वेंट शैल इन एनी रेडियो ब्रॉडकास्ट टेलीकास्ट थ्रू एनी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और इन एनी डॉक्यूमेंट पब्लिश्ड इन इट ओन नेम और एनोनिमसली साइडोनिमली, मीन्स छद्मवेश में आप गवर्नमेंट का क्रिटिसिज्म किसी रूप में नहीं कर सकते हैं, और इन द नेम ऑफ एनी अदर पर्सन और इन एनी कम्युनिकेशन टू द प्रेस और एनी पब्लिक अटरेंस, कहीं भी बयान देते हुए गवर्नमेंट की किसी भी योजना का आप क्रिटिसाइज नहीं कर सकते. मेक एनी स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट और ओपिनियन which has the effect of an adverse criticism of any current or recent policy or action of the central government or a state government. Provided that in the case of any government servant included in any category of government servant specified in the second proviso to sub-rule 3 of rule 1, nothing contained in this clause shall apply to bona fide expression of views by him as an office bearer of a trade union, of association of government servants for the purpose of safeguarding the condition of service of such government servant for securing improvement thereon, which is capable of embracing the relation between the central and the state government, which is capable of embracing the relation between the central or any of the foreign government. तो इस तरह के किसी भी योजना का आप क्रिटिसाइज नहीं कर सकते हैं. Provided that nothing in this rule shall apply to any statement made or views expressed by a government servant in his official capacity or in the due performance of the duties assigned to him. ये ध्यान रखना है. Next is rule number 10. We are discussing Conduct Rule 1964. Rule number 10 is evidence before committee or any other authority. किसी भी कमिटी या किसी अथॉरिटी के सामने आप कोई भी गवर्नमेंट का जो रिकॉर्ड है उसका एविडेंस आप नहीं दे सकते हैं जब तक कि गवर्नमेंट का ऑर्डर नहीं हो. Save as provided in sub-rule 3, no government servant shall, except with the previous sanction of the government, give evidence in connection with any inquiry conducted by any person, committee or authority. Where any sanction has been accorded under sub-rule 1, no government servant giving such evidence shall criticize the policy
और एनी एक्शन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट और ऑफ ए स्टेट गवर्नमेंट। किसी भी नहीं दे सकते सेंट्रल या स्टेट में। नथिंग इन दिस रूल शैल अप्लाई टू, जो गवर्नमेंट के आदेश से आपको देना है उसमें वो आप दे सकते हैं, बट बिना गवर्नमेंट के आदेश से आप कोई भी एविडेंस वगैरह किसी भी कमिटी अथॉरिटी को नहीं दे सकते हैं गवर्नमेंट रिकॉर्ड का, एज पर रूल नंबर 10 ऑफ कंडक्ट रूल 1964। रूल नंबर 11, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफिशियल इंफॉर्मेशन। ऑफिशियल का इंफॉर्मेशन को आप कम्युनिकेट इन गुड फेथ में कर सकते हैं एज पर आरटीआई एक्ट 2005। आरटीआई एक्ट के तहत कर सकते हैं, प्रोवाइडेड दैट नो गवर्नमेंट सर्वेंट शैल एक्सेप्ट इन अकॉर्डेंस विथ एनी जनरल और स्पेशल ऑर्डर of the government or in performance in good faith of the duties assigned to him communicate directly or indirectly any official document or any part thereof or classified information to any government servant or any other person। मतलब किसी को बिना गवर्नमेंट रूल के किसी को भी आप ऑर्डर नहीं दे सकते ऑफिशियल इंफॉर्मेशन, बट आरटीआई एक्ट के तहत दे सकते हैं, जो भी अलाउड है। आरटीआई एक्ट भी सिलेबस में है, उसको भी पढ़ना है। नेक्स्ट इज रूल नंबर 12, सब्सक्रिप्शन। चंदा वगैरह आप नहीं ले सकते विदाउट द सैंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट ऑथराइज है वहीं से ले सकते हैं। No government servant shall, except with the previous sanction of the government or of the prescribed authority, ask for as accept contribution to or otherwise associate himself with the raising of any fund or any collection in cash or in any kind of pursuance of any whatsoever। कोई भी चंदा आप इकट्ठा नहीं कर सकते हैं जब तक गवर्नमेंट का सैंक्शन नहीं हो। ठीक है। नेक्स्ट है गिफ्ट। 13 में गिफ्ट में अभी आपका लेटेस्ट अपडेट हुआ है। देखिए कंडक्ट रूल में आपका 2014 में चेंज हुआ था, वो इसमें अपडेटेड है, बट 2019 में भी एक चेंज हुआ है, लेटेस्ट चेंज हुआ है 2019 में। ये गिफ्ट में ही चेंज हुआ है आपका। 2014 का चेंज इसमें अपडेटेड है, जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं 2019 का नहीं है। बस एक चेंज हुआ है 2019 में गिफ्ट में, रूल नंबर 13 जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, इसी गिफ्ट में एक चेंजिंग हुआ है जो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। 6 अगस्त 2019, जुलाई 2019। देखिए गिफ्ट क्या है। देखिए गिफ्ट दो तरह का होता है, एक जो इम्पोर्टेंट एक्टिविटी होता है फैमिली का, जैसे आपका क्या हो गया मैरिज हो गया, और इस तरह के बर्थडे वगैरह हो गए, स्पेशल जो एक्टिविटी होते हैं उसके लिए अलग रूल है, और जो जनरल है उसके लिए अलग रूल है गिफ्ट का। मैरिज वगैरह टाइप में आप ग्रुप में बटा हुआ है, ग्रुप सी गवर्नमेंट सर्वेंट ले सकते हैं 7,500, ग्रुप बी का 15,000 और ग्रुप ए का 25,000। ये तो हो गया मैरिज, डेथ वगैरह स्पेशल सेरेमनी में। और अदर में आप 2,000 ग्रुप सी और ए और बी के लिए 5,000। तो ये गिफ्ट का याद रखेंगे, ये हमेशा पूछा जाता है आपका, तो गिफ्ट को आप याद रखेंगे। देखिए गिफ्ट में है वेडिंग, एनिवर्सरी, फ्यूनरल, रिलीजियस फंक्शन, इन सब केस में आप ग्रुप सी के लिए 7,500, ग्रुप बी के लिए 15,000, ग्रुप ए के लिए 25,000। इन अदर केस ये जो मैंने बताया वेडिंग, एनिवर्सरी, फ्यूनरल, रिलीजियस फंक्शन, इसके अलावा जो भी केस होगा उसमें ग्रुप सी के लिए 2,000 और ग्रुप ए और बी के लिए 5,000। तो ये दो कैटेगरी है गिफ्ट का, तो ये ध्यान रखेंगे, इससे ज्यादा आप गिफ्ट किसी से नहीं ले सकते हैं। बट एक कैजुअल मील, लिफ्ट, सोशल हॉस्पिटलिटी, ये सब गिफ्ट के डिफिनेशन में नहीं आता है। ठीक है।
तो ये ध्यान रखेंगे, गिफ्ट आपका इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन, ये लेटेस्ट अपडेट हुआ है गिफ्ट में 2019 में, 14 के बाद। तो 14 में भी गिफ्ट में ही अपडेट हुआ था। 14 में आपका 7,500, 15,000 और 25,000 हुआ था, और 2019 में पहले ये 500 और 1,500 था, इसको बदल के 2,000 और 5,000 किया गया है 2019 में। तो ये गिफ्ट वाला लेटेस्ट चेंज है 14 और 19 का, इससे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इससे पूछा जाएगा, इसको आप याद रखेंगे अच्छे से, इस बार भी इससे क्वेश्चन आ सकता है। देखिए गिफ्ट का ही पार्ट है डॉरी 13A। डॉरी में क्या है, नो गवर्नमेंट सर्वेंट शैल गिव और टेक, नॉट दहेज लेना है ना देना है, डॉरी को लेना देना मना है, बस यही है। डॉरी का मीनिंग क्या है, जो डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 में है वही मीनिंग यहाँ भी है डॉरी का। तो ध्यान रखेंगे, इसमें बस इतना ही है। 13A का पूछा जाता है रूल नंबर, डायरेक्टली रूल नंबर के साथ इसको याद करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, याद हो जाएगा। आप लोग इसको रूल नंबर 13A तक पढ़िए और इसको याद कीजिए। नेक्स्ट क्लास में रूल नंबर 14 से हम लोग पढ़ते हैं। एनी क्वेश्चन अप टू रूल नंबर 13A? एनीबॉडी, एनी क्वेश्चन? पूछिए, कोई दिक्कत है, कोई भी क्वेश्चन है तो, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग रूल नंबर 14 से पढ़ेंगे। तब तक आप लोग रूल नंबर 13 तक को याद कर लीजिए। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक है, कंडक्ट और CCA, इससे लगभग आपका 30 क्वेश्चन रहेगा पेपर 3 में। 30 क्वेश्चन मीन्स 60 मार्क्स का आपको 2 ही बुक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग अच्छे से याद कीजिए और पढ़िए। ओके, थैंक यू, गुड नाइट।